Good evening, sir. Good evening. Ayush, you have to speak to me after the class, okay? Ayush, are you getting my voice? Okay, sir. हाँ. सर कॉल पे बात करेंगे हाँ? Sir, कॉल पे बात करेंगे आवाज बहुत कट good रहा है evening, आयुष. sir. यू डू वन थिंग आयुष, तुम मेरे इस पे मैसेज करना, ओके? Because you have not confirmed, no? So we'll speak after the class. Good evening, sir. Good evening. Pranay is remaining and Jai is remaining. तो पिछले क्लास में हमने पेज नंबर 25 तक कंप्लीट किया था, जीन एंड जीनोम, करेक्ट? You can open your सर you can open your textbook, page number 26. We will start genes and their alleles, dominant and recessive alleles, genotype, phenotype, and how the inheritance is taking place, Punnett square. Okay, these things we will see today. Okay, I think Pranay is not yet come. Jay is not yet come. Okay, we will wait for a couple of minutes. 9:05 will 7:05 will start the class. Until then, all of you can see in the textbook. There are some figures are there, no? Figure 3.3. Okay, 3.4. What is this? 3.5. You can see these things. What is the allele? So some diagram is there. Just look at those figures. Try to understand what these people are trying to do. Today my net is a bit this one. Okay, so I will be keeping my video off. Hmm. Class
Okay, so let's start. Genes and their alleles. Genes and their alleles. Okay, please don't do any writing on this one. Okay, so genes and their alleles. So all of you know what is a gene. So what is a gene? Anyone want to guess what is a gene? The change in sequence of information inside DNA. Hmm. Okay, it is a sequence of DNA which is having certain information. Okay, you can tell in a very simple term, we can say like that. So earlier we have discussed about one term, that is a character. Okay, character, alternative forms of a character is called Traits. trait. Good. Similarly, when we are talking about genes, the genes are going to code for some function. Okay, the genes can have also alternative forms. For example, there is some, for example, a gene that is going to give the, what you are seeing here in this figure 3.3. Okay, this boy is able to roll the tongue like this around. Okay, the girl is not able to roll her tongue like that. Okay, so most of us will be able to roll our tongue in this fashion. Okay, but some of them are not able to do it. So this rolling, tongue rolling, this particular feature, okay, is what we say is the dominant. डोमिनेंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग में यही आ रहा है, डोमिनेंट. लेकिन कुछ लोग टंग को रोल नहीं कर पाते. ओके, नॉट रोलिंग. ओके, देन वी विल से दैट दिस इज द रेसेसिव, RECESSIVE. ओके, ये वाला पॉइंट आप समझ रहे हैं. डोमिनेंट मतलब एक जीन का दो टाइप है. एक जो कि टंग को रोल कर सकते हैं. ओके, उसका एक जीन है. और इसी का एक दूसरा फॉर्म है इस जीन का, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग डिप्लॉयड है ना, एक पेरेंट से, एक मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है. तो एक क्रोमोसोम में ये होगा कि टंग रोल हो सकता है, दूसरे वाले जीन में क्या है कि टंग रोल नहीं हो सकता है. तो ये दो टाइप के जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं. ओके, सो व्हाट आर एलील्स? द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन. एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन. जिस तरीके से आपने बताया ना कि ट्रेट कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म है, जीन्स का अल्टरनेटिव फॉर्म है एलील. ओके, सो here you see in this figure alleles करके जो लिखा हुआ है ना, ग्रीन वाला बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप देखिए, फिगर देखिए, एक क्रोमोसोम बनाया. ठीक, उस क्रोमोसोम में एक कैपिटल ए है, और उसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी
ये वाला Sir, a क्रोमोसोम pair of chromosomes. तो मेरा जो माय वॉइस इज ब्रेकिंग और इट इज कमिंग फाइन? सर फाइन। कमिंग फाइन ना? It's fine now. ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई साहब मैं एक 8 o'clock कॉल करता हूँ क्लास के बाद. So there are the alternative forms of the chromosome. So one is coming from the mother, one is coming from the father. Okay, it is the same chromosome, but one is coming from mother and father. This set, this pair is called what? Homologous chromosome. ठीक, अब देखो मदर की तरफ से जो क्रोमोसोम आया, फादर की तरफ से जो क्रोमोसोम आया, वो तो सेम ही रहेगा मोटा मोटी, लेकिन कुछ फर्क आ सकता है ना. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ द कलर ऑफ द मदर्स आई इज ब्लू इन कलर एंड फादर्स आईज आर ब्लैक इन कलर, ओके, मैक्सिमम इसका जो जीन्स है एक जैसा रहेगा दोनों का, लेकिन वो जो आंख का कलर का जीन है वो अलग रहेगा. तो इधर वही हो रहा है कि दोनों क्रोमोसोम का हमने बना दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम करके दो बनाया. एक में जैसे कि ये कैपिटल ए है, यहाँ पे दूसरा जीन है, ये भी मैच कर रहा है, दोनों में सेम है मदर फादर का. यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल सी लिखा गया और यहाँ पे स्मॉल सी लिखा गया. इसका मतलब क्या है कि ये दोनों में फर्क है, ठीक है. और ये जीन भी क्या हुआ, ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी. तो ऐसा हमने क्यों लिखा, यहाँ पे दोनों मैच कर रहा है, ए और बी दोनों एक जैसा है पेरेंट्स में, लेकिन यहाँ पे जो एक कैपिटल लिख रहे हैं एक स्मॉल लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? One is dominant. रेसेसिव एंड डोमिनेंट, ठीक है. यही इसमें समझने वाला पॉइंट यही है कि ये जैसे कि फॉर एग्जांपल कलर ऑफ द आई का है, ठीक है, कलर ऑफ द आई का ये जीन है, समझिए सी वाला जो जीन है ना, ये आंख के कलर का है. हम लोग कैपिटल सी तब लिखेंगे जब जीन डोमिनेंट रहे. मतलब क्या, ये अगर ब्लू कलर का है ये जीन कैपिटल सी और स्मॉल सी ब्लैक कलर है, और बच्चे में जो भी बच्चे हुए इनको सभी बच्चों में ब्लू कलर आ रहा है, आंख का कलर, तो वो जीन क्या हुआ, बार बार वही फॉर्म एक्सप्रेस हो रहा है. हाँ, वो डोमिनेंट है. वो किसी बच्चे में जो है आपको ब्लैक नहीं आ रहा है. तो क्या हुआ कि सी जो है वो डोमिनेंट जीन हो गया, तो हम उसको कैपिटल में लिखेंगे. और जो रेसेसिव है यानी उसका ऑपोजिट, जो कि अपने से एक्सप्रेस नहीं हो पाता, वो इससे ये दूसरा जो जीन है वो उसको डोमिनेट कर देता है, वैसे जीन को हम लोग बोलते हैं रेसेसिव जीन. अब उसी तरीके से डी वैसा ही है. ओके, ये वाला डी जो जीन है फादर में, वो डोमिनेट कर रहा है इस जीन को जो कि मदर में, मदर वाले क्रोमोसोम से आया. ठीक, तो ये हो गया डोमिनेंट और रेसेसिव जीन. ये वाला चीज आपको समझ में आया? सर ये डोमिनेंट और रेसेसिव किस पे बेस्ड है सर, मतलब ये क्या हो रहा है जो डोमिनेंट हो जा रहा है? हाँ, अब देखो जैसे हमने बताया कि आई का कलर, तो अगर मदर फादर है, उनको फॉर एग्जांपल 10 चिल्ड्रंस है, मदर का ब्लू कलर का आईज है, ठीक है. अगर सभी बच्चों में ब्लू कलर के ही आईज आ रहे हैं, दैट मीन्स द जीन फॉर द ब्लू कलर आई इज डोमिनेंट, करेक्ट? तो मतलब वो नंबर पे बेस्ड है, जो जितना ज्यादा वो डोमिनेंट है. नहीं, नंबर नहीं. क्यों? डोमिनेंट का क्या मतलब होता है? डोमिनेंट यानी डोमिनेट करना, वो दूसरे चीज को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, वो उसको डोमिनेट करेगा. तो ये जो कैपिटल सी है वो ब्लू कलर का था, और सभी ये जो है हम लोग बिना एक्सपेरिमेंट का नहीं बोल सकते हैं कि ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है. आपको देखना पड़ेगा, ठीक है.
जैसे कि आपको जैसे कि कलर ऑफ द हेयर है, सो फॉर एग्जांपल इन दी यूरोपियन पीपल इट इज समवॉट ब्राउन या गोल्डन हेयर है। अपने इंडियन पॉपुलेशन, एशियन पॉपुलेशन में ब्लैक हेयर रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज ए पेरेंट इज एशियन एंड अदर पेरेंट इज यूरोपियन फॉर एग्जांपल। So what type of children they have? For example, 10 children they have. So in the 10 children, what is the going to be the color of the hair? It can be either black, it can be brown, or it can be in between. तीनों चीज हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर समझें कि बीच वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, केवल या तो ब्लैक बन रहा है या ब्राउन बन रहा है, दोनों में से एक चीज डोमिनेट करेगी, ठीक है। तो हम लोग इसको और एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, और एग्जांपल देखेंगे। ये जो डोमिनेंट है, रेसेसिव है, ये डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट, क्योंकि वो दूसरे को दबा दिया। इस जीन ने, जो कि ब्लू कलर ऑफ द आई का जीन है, उसने डोमिनेट किया ये ब्लैक कलर आई को, इस जीन को उसने डोमिनेट किया, इसीलिए ये डोमिनेंट जीन है। यू गॉट द पॉइंट? नहीं, ये रेसेसिव वाला जो सर जीन होता है ये फिर हमेशा के लिए से खत्म हो जाता है क्या? नहीं, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक अब इसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे, ओके, फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन एक आदमी में है जिसका एक क्रोमोसोम उसके मदर से आया, एक क्रोमोसोम फादर से आया, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब उसके जो बनेंगे, फॉर एग्जांपल इफ इट इज ए बॉय, ओके, वो बड़ा होने के बाद उसके जो स्पर्म सेल्स बनेंगे उसमें ये होगा और ये क्रोमोसोम दोनों अलग अलग होंगे ना, बिकॉज द रिप्रोडक्टिव सेल्स आर हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड होने के कारण या तो ये क्रोमोसोम उसमें रहेगा या तो ये क्रोमोसोम रहेगा। तो जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें या तो ये जीन होगा या तो ये जीन होगा, दोनों नहीं होगा। करेक्ट? क्वेश्चन वही था आपका? हाँ क्या सर। क्वेश्चन था? क्वेश्चन यही था क्या? सर मैं ये बोल रहा था, जैसे सर ये कलर ऑफ द आई में सर डोमिनेंट वाला एक बार सर मार्क हो गया तो सर उसके बाद तो फिर सर वही डोमिनेंट वाला रहेगा ना सर, रेसेसिव वाला तो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। कैसे? कौन खत्म कर देगा उसको आप? क्योंकि देखिए, अब ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, इसका हम लोग जो अभी आगे देखने वाले हैं, ये पनेट स्क्वायर, ये पनेट स्क्वायर में हम लोग वही देखेंगे कि किस तरीके से ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, इफ वन पेरेंट इज हैविंग वन टाइप ऑफ allele and other is having the another type of allele, then what are the combinations are possible in the coming generation? Okay, so that we will see in the Punnett square. Okay, here what we are trying to understand is what is gene, what is allele. Allele is the alternative form of the gene. For example, color of the eye, so someone is able to roll the tongue or not able to roll the tongue. These are the alternative forms of the gene. Okay, so whichever is the dominating, जो कि एक्सप्रेस हो रहा है, उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ओके, जो कि ये डोमिनेंट जीन के द्वारा सप्रेस हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसेसिव जीन। उसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल लेटर में। ये वाला पॉइंट आप समझे? डोमिनेंट जीन को कैपिटल में लिखना है और रेसेसिव जीन को स्मॉल लेटर में लिखना है। एनी डाउट? पूछिए, आपको जो भी डाउट है आप पूछिए। ओके, अब ये जो पर्सन है, ये होमोलोगस पेयर है उस आदमी में। ओके, so this is a arbitrary person. Okay, name is boy for example. Okay, now this boy with this one combination, if you look at this gene A, तो इसको हम लोग, इसके पास ये दो फॉर्म है ना, कैपिटल ए मदर से आया, कैपिटल ए भी फादर से आया। तो ये जो जीन है इसके दोनों एलील इसके सेम है, बोथ आर कैपिटल ए। तो जब एक ही फॉर्म के दोनों एलील रहने पे, ओके, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस।
ये वाला पॉइंट आप समझे? वन पर्सन इज देयर, द पर्सन इज डिप्लॉयड, वी आर ऑल डिप्लॉयड नो। हमारे बस एक क्रोमोसोम है कि दो 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 क्रोमोसोम्स है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। पक्का? हर्षित आपका क्या हाँ कहना सर। है, हम लोग के पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है कि सिंगल केवल एक ही क्रोमोसोम रहता है बॉडी में? जैसे कि हम लोग 46 क्रोमोसोम्स लिखते हैं ना, ह्यूमंस में कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स। यानी मेटाफेज के स्टेज में अगर आप सेल का फोटो लेंगे, कोई लीवर सेल लीजिए, स्टमक सेल लीजिए, स्किन सेल लीजिए, ओके, ये सब नॉर्मल सेल्स हैं, दीज आर ऑल सोमैटिक सेल्स, दीज आर नॉट गैमेटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक यानी नॉर्मल सेल, गैमेटिक यानी जो गिमिट है, स्पर्म्स एंड एग्स, वो गैमेटिक सेल्स हो गया। तो जो नॉर्मल सोमैटिक सेल है उसमें कितना क्रोमोसोम्स रहता है? 46 क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमंस इज 46। तो ये जो 46 है, इस इज नथिंग बट 23 पेयर्स। ओके, 23 पेयर्स, 23 पेयर्स यानी 23 का जोड़ा है, 23 क्रोमोसोम्स का जोड़ा है, जिसमें कि हर एक जोड़ा एक मम्मी से आया, एक पिताजी से आया, दो टाइप। ओके, वो एक पेयर है, हर क्रोमोसोम में एक पेयर है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 23 पेयर्स। तो फॉर एग्जाम्पल इफ फ्रॉम मदर, फॉर एग्जाम्पल जो कान है, कान का कुछ लोगों का जो ईयर लोब होता है वो फ्री रहता है, और कुछ लोग का क्या रहता है, जॉइंट रहता है। ये भी एक कैरेक्टर है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मदर का फ्री है और फादर का जॉइंट है, तो क्या हम लोग बोलेंगे कि दोनों एलील्स जो हैं एक ही जीन है? कान का ये जुटा हुआ है कि नहीं, ये एक जीन का है कैरेक्टर, और इसका दो फॉर्म है, उसको हम लोग बोल रहे हैं एलील। ओके, तो इस में अगर ये हम माने कि ये जीन है उसके लिए ए, तो क्या इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द एलील इसके पास हैं या एक ही फॉर्म है? एक ही फॉर्म है। एक ही फॉर्म है, कैपिटल ए हमने लिखा। अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए होता, इसका मतलब एक डोमिनेंट है और एक उसका ऑपोजिट कोई कैरेक्टर है जो कि हम लोग स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। लेकिन इसके पास तो दोनों मदर और फादर से एक ही टाइप का आया जीन, एलील। ओके, तो इसीलिए हम लोग कैपिटल ए लिखे। बोथ आर सेम, दैट इज व्हाई होमो मींस सेम, होमोजाइगस, जाइगोसिटी, जाइगस, जाइगोट। ओके, ये जो है इसमें ये दोनों जीन्स सेम है, एलील्स आर सेम। ओके, ऐसे में ये जो कैरेक्टर है, कैपिटल ए वाला जो कैरेक्टर है, ये क्या एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल होगा सर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए जो है, ये कान जुटा हुआ रहता है, ईयर लोब, वो है फॉर एग्जाम्पल। दूसरे क्रोमोसोम में भी तो सेम वही है, कान जुटा रहने वाला। तो जब दोनों ही जीन सेम हैं, एलील्स, तब डेफिनेटली इसका जो है कान जुटा हुआ ही रहेगा, वो एक्सप्रेस होगा, वही एक्सप्रेस होगा, इसीलिए वो डोमिनेंट है। ओके, जो एक्सप्रेस हो रहा है वही डोमिनेंट है, जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो रिसेसिव है, सीधी बात। गॉट इट? जो एक्सप्रेस हो रहा है वही डोमिनेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों सेम एलील है, दोनों क्रोमोसोम्स में सेम एलील है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं होमोजाइगस। चलिए दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। सर अगर एक ही पेरेंट्स को, सर यू गिव द एग्जांपल ऑफ 10 चिल्ड्रन, मतलब 5 का आईज ये और 5 का आईज अलग हो सकता है सर? हाँ, हो सकता है, इंटरमीडिएट कलर्स भी आ सकता है।
Okay, all these combinations are possible, but here for our understanding, simplicity of understanding, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक्सप्रेस हुआ ऑल्टरनेटिव ऑफ फॉर्म ऑफ द जीन को ही लेके चल रहे हैं, एलील। ओके, जस्ट टू फॉर्म्स को लेके चल रहे हैं ताकि हम लोग चीजों को आसानी से समझ सकें। ओके, सिंपली सर आई एम नॉट आस्किंग दैट। हाँ, सर हम पूछना चाह रहे कि सर वो एलईडी मान लीजिए कि इसका ब्लू आईज है सर, ठीक है, पेरेंट्स फादर का ब्लू आईज है, मदर का ब्लैक आईज है, ठीक है, तो सर 5 बच्चे का ब्लू आईज हो गया और सर 5 बच्चे का ब्लैक आई हो गया, तो सर दिस कैन हैपन। हाँ, दिस कैन आल्सो हैपन, दिस कैन आल्सो हैपन। तो होता ये है कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे, all of them can be boys, all of them can be girls, 5 can be boy, 5 can be girl, that is also possible। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जेनेटिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग पनेट स्क्वायर में देखेंगे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं कि जब एक पेरेंट के पास एक टाइप का एलील है, दूसरे के पास दूसरा टाइप का एलील है, तो जो जो बच्चे आएंगे तो उनमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितने का ये रहेगा, कितने का ये टाइप का रहेगा और कितने का हो सकता है कि बीच में रहे। What will be the genotype and what will be the phenotype? Okay, we will see in Punnett square. Okay, you will understand more clearly in Punnett square. इसके पहले कि हम लोग Punnett square पढ़ें, हम लोग को ये टर्म्स समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही सब टर्म्स हम लोग इसके बाद यूज करेंगे। Allele, okay, they are the alternative forms of the gene. Dominant, the form of the allele that is going to express, that is the dominant. Okay, now for example, you see this combination. Okay, I will ask one by one. Okay. uh, okay, who want to answer? Okay, I am giving option. Who want to answer? You can volunteer. I will ask some questions. So what is the question sir? Okay, I used to you want to answer. Now question is this, ये आप जो देख रहे हैं कॉम्बिनेशन स्मॉल बी, तो इसमें ये स्मॉल बी क्या है? स्मॉल बी रेसेसिव है सर। स्मॉल बी रेसेसिव है, तो रेसेसिव क्या बोलेंगे, पूरा शब्द बोलिए, रेसेसिव जीन है या रेसेसिव एलील है? सर रेसेसिव एलील। हाँ, इट इज ए रेसेसिव एलील, गुड। ओके, तो ये जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है, इसीलिए इसे हम लोग बोल रहे हैं एलील। सो जो स्मॉल बी है, दिस इज रेसेसिव, ये डोमिनेंट नहीं है, ये रेसेसिव है, इसीलिए इसको हम लोग स्मॉल लिखे। लेकिन आप देख रहे हो कि इसके साथ जो है ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, माँ की तरफ से भी रेसेसिव जीन आया और फादर की तरफ से भी रेसेसिव जीन आया। फॉर एग्जाम्पल एक जीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, ठीक है, और उस जीन का एक फॉर्म जो है ऐसा है जिसके कारण ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो उसको हमने लिख दिया स्मॉल बी। लेकिन ज्यादातर आप जिसको देखते हैं सबको तो ब्लड क्लॉटिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जेनेटिकली, तो वैसे लोगों का जो जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है हमने लिखा स्मॉल बी, क्योंकि ये ज्यादातर एक्सप्रेस नहीं होता, रेयर है। लेकिन इसमें एक्सप्रेस क्यों हुआ? किसी को एक्सप्रेस तो नहीं हुआ, इसको क्यों हुआ? इसको इसीलिए हुआ क्योंकि जो इसका दूसरा क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, उसमें भी यही आया, रेसेसिव जीन ही आया। जब दोनों ही रेसेसिव जीन रहेंगे तो यानी ये भी होमोजाइगस है, एक ही टाइप का एलील से है, तो क्या ये एक्सप्रेस होगा? रेसेसिव है लेकिन होमोजाइगस है, यस सर। एक्सप्रेस होगा? हाँ सर। हाँ, एक्सप्रेस होगा, करेक्ट। इट इज रेसेसिव, बट इट इज एक्सप्रेसिंग।
Why it is expressing? Because there is the dominant gene is the dominant allele is absent. Because the dominant allele is absent, ये होमोजाइगस रेसेसिव है. इसको हम लोग कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? होमोजाइगस रेसेसिव. ओके, अब ये कॉम्बिनेशन देखते हैं जिसमें कि कैपिटल सी, स्मॉल सी एंड कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स हैं. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर दे होमोजाइगस? नो सर. नो, वी हैव टू से इट इज द हेट्रोजाइगस. हेट्रो यानी अलग, वेरिएशन है, डिफरेंस है, हेट्रोजाइगस. एक्सप्रेस क्या होगा? ये कैपिटल सी होगा कि स्मॉल सी होगा, कैपिटल डी होगा कि स्मॉल डी होगा? कैपिटल सी स्मॉल सी में कौन सा एक्सप्रेस होगा? सर कैपिटल सी होगा. ये डोमिनेंट एलील है, इसीलिए इसको हम लोग कैपिटल लिख रहे हैं. उसी तरीके से कैपिटल डी एंड स्मॉल डी में कैपिटल डी वाला जो एलील है वही एक्सप्रेस होगा, वो डोमिनेंट है. ओके, सो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जब एक जीन के दो फॉर्म हैं वो एलील्स कहलाते हैं. एक पेरेंट के पास से एक एलील आया और दूसरे पेरेंट से दूसरा एलील आया. अगर ये दोनों एलील जो पेरेंट से आए हैं वो एक जैसे रहेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस. अगर दोनों ही डोमिनेंट एलील्स हैं, इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट. If both the alleles are homozygous and they are recessive alleles, we say homozygous recessive. Heterozygous तब बोलते हैं जब दोनों form of the genes, both alleles are there, then we say it is a heterozygous. इसमें क्लैरिटी है? कोई डाउट है? पूछिए. ओके, अब जो आपका नेक्स्ट है इसमें 3.8 जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. टाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप. जीनोटाइप से कुछ आप क्या गेस कर सकते हैं? क्या ये बोल रहा है? एक्सप्रेसिव. सर एक्सप्रेस हो रहा है. एक्सप्रेस हो रहा है. जो एक्सप्रेस हो रहा है ना, जो दिखता है, सर जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को सर जीनोटाइप कहते हैं और द फिजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस को सर फिनोटाइप कहते हैं. क्योंकि देखिए सही बात, तो जीनो जो है, जीनो यानी जीन, जेनेटिक, उससे संबंधित है. यानी ये आपको दिखेगा नहीं ना, वो तो जीन्स में है. ऐसे हम लोग ऐसे नॉर्मल जो है जीन्स को थोड़ी देख पाते, वो तो डीएनए में है. तो जीनोटाइप जो है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके, सीक्वेंस, डीएनए का सीक्वेंस करके तब हम लोग उसका पता लगा सकते हैं. ओके, सो दिस इज देयर एट द जेनेटिक लेवल. फिनोटाइप, फिनोटाइप यानी जो एक्सप्रेस हो रहा है, कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड, आपको दिखाई देगा. ओके, वो कान जुटा हुआ है कि नहीं जुटा हुआ, वो आपको दिखाई देगा. वो एक्सप्रेस हुआ, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ. आपको जीन दिखाई नहीं देगा, आपको सीक्वेंस करना है. वो जेनेटिक में है, जेनेटिक लेवल में है. तो जो जेनेटिक लेवल में है, जिसको आप सीक्वेंस करके पता लगाएंगे, वो है जीनोटाइप. और जो आपको दिख रहा है, जो एक्सप्रेस हुआ, वो है फिनोटाइप. फॉर एग्जाम्पल फूल है, फूल अगर ब्लू कलर और व्हाइट कलर के एलील्स हैं उसमें. ओके, फॉर एग्जाम्पल you take some like a hibiscus or something. Okay, generally they are red in color, but you also have white hibiscus, अड़हुल का फूल जो बोलते हैं. तो आप ये सोच सकते हो कि रेड कलर, ओके, you will write
इज द डोमिनेंट। ज्यादातर आप देख रहे हो ना रेड कलर में रहता है, लेकिन कुछ कुछ व्हाइट कलर में भी रहता है। ओके, अगर ये दोनों जीन्स उस पौधा में रहेगा, कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है उसके बेसिस पे आप बोलेंगे कि कौन सा डोमिनेंट है। ओके, अगर रेड एक्सप्रेस हो रहा है तो रेड कैपिटल आर, अगर व्हाइट वाला जीन है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो इसका जीनोटाइप क्या हुआ, जो हमने इसके पहले लिखा ना, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये सब उसका जीनोटाइप है। क्या उसको देख के आप बोल रहे हो कि उसका फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप आपको जो दिख रहा है वो आप बोलते हो, वो है फिनोटाइप। ओके, नाउ यू सी यहाँ पे वो टंग रोलर वाला एग्जांपल लिया। ओके, अगर जो आदमी टंग को रोल कर पा रहा है वो डोमिनेंट एलील है, उसका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस? तो क्वेश्चन फिर से बोलिए। हाँ, ये कैपिटल आर जो है ये क्या टाइप का कॉम्बिनेशन कहलाता है? होमोजाइगोस डोमिनेंट। सर होमोजाइगस को कहेंगे, सर होमोजाइगस पेयर हो। हाँ, होमोजाइगस व्हाट? डोमिनेंट। डोमिनेंट, कैपिटल है ना, डोमिनेंट। और अगर ऐसे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोटाइप? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इधर हेट्रोजाइगस में हम लोग डोमिनेंट रेसेसिव नहीं बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे बस। ओके, एक्सप्रेस तो होगा वही डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब ही है कि वही एक्सप्रेस होगा, ठीक है। लेकिन जब हेट्रोजाइगस होता है ना तो हम लोग हेट्रोजाइगस डोमिनेंट नहीं बोलते हैं, क्योंकि हेट्रोजाइगस रेसेसिव होता है क्या? नो नहीं सर। जब रेसेसिव एक्सप्रेस ही नहीं होगा तब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हेट्रोजाइगस रेसेसिव बोलने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो उसको केवल हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस। अब वही आप देखिए, अगर स्मॉल आर लिखेंगे तो ये हो गया होमोजाइगस रेसेसिव। हाँ, होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो ये आपके ब्लू बॉक्स में जो है इसमें बनाया दिया गया है डेफिनेशन। जीनोटाइप, द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज जीनोटाइप, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड इज द फिनोटाइप। जो कैरेक्टर्स हम लोग को ऑब्जर्व हो रहे हैं, ओके, वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, वो फिनोटाइप कहलाता है। ओके, आई थिंक दिस वन इज क्लियर। एनी डाउट यू हैव इन दिस वन, जीनोटाइप फिनोटाइप? सबको समझ में आ गया ना? ओके, सर डोमिनेंट रेट और डोमिनेंट, सॉरी, सर डोमिनेंट रेट और डोमिनेंट एली दोनों डिफरेंट है। हाँ, ट्रेट एंड एलील। तो देखिए यहाँ पे जो है जेनेटिक्स में बहुत सारे टर्म्स हैं, ओके, एंड वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट इज द, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन से टर्म को हम लोग यूज करते हैं। कैरेक्टर के जो, कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को ट्रेट बोलते हैं, और जीन के अल्टरनेटिव,
हर्षित, ये जूम में हाफ एन आवर का ही शायद है कुछ टाइम लिमिटेशन, वो इन दैट व्हाट यू से गूगल वाला जो है वो जो हम लोग यूज करते हैं उसमें थोड़ा डेटा ज़्यादा लगता है, ये जूम में थोड़ा डेटा फिर थोड़ा कम ठीक रहता है, कम लगता है इसमें। आज मेरा ब्रॉडबैंड में प्रॉब्लम है, इसीलिए आई एम यूजिंग माय मोबाइल नेटवर्क, so that is why today I am using the Zoom. 1 2 3 4 5 who else is remaining? Arshit is remaining. अर्शित का भी नेटवर्क बहुत स्लो लग रहा है, नो उसको भी कट रहा है। इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है ना, जूम में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके ओके, सो आपका क्वेश्चन ये था कि कैरेक्टर का ऑल्टरनेटिव फॉर्म ट्रेट बोलते हैं और जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म एलील बोलते हैं, तो क्या जी ये एलील और ट्रेट एक ही है? तो यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे कि कैरेक्टर और ट्रेट ये दोनों फिनोटाइप से जुड़े हुए हैं। कैरेक्टर तो दिखने वाला चीज है, क्या जीन आपको दिखेगा? नहीं, ये तो आप सीक्वेंस करेंगे, ये जीनोटाइप वाला चीज। ओके, सो जीन्स आर रिलेटेड विद द जीनोटाइप, character is related with phenotype, the alternative form of character is called trait, alternative form of gene is called allele. This is clear? वॉइस मेरा आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. It's so. तो सब लोग समझ गए ना ये कैरेक्टर एलील? चलिए नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ सर हाँ हेलो। हाँ प्रिंस बोलो। सर ये जो ये आरआर वाला जो एलील था, जो होमोजेनस था वहां पे, वो तो डोमिनेंट हुआ, तो मतलब वो दिखेगा ना? तुम आर आर तुम बोल रहे हो, यू हैव टू टेल मी। नो, आई डोंट नो यू आर टेलिंग कैपिटल और स्मॉल आर, यू हैव टू टेल, यू आर टेलिंग होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। सर होमोजेनस बोले तो। ओके, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजेनस डोमिनेंट। in homogeneous dominant, what is the question? सर होमोजेनस डोमिनेंट एलील है ना? Homozygous dominant is the genotype. ओके, क्योंकि हाँ तो सर ये तो दिखेगा ना, ये तो मतलब ये तो रिसेसिव नहीं है, डोमिनेंट है, तो ये तो नहीं, दिखेगा होमोजाइगस नहीं, होमोजाइगस डोमिनेंट जब हम बोल रहे हैं तो ये तो आपके जीनोटाइप के डिस्क्रिप्शन है ना, कि आपका जीनोटाइप कैसा है उसको आप डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म यूज कर रहे हैं। अब कोई है उसका जीन है कि कान उसका जुड़ा हुआ है कि नहीं है, तो हम लोग समझिए उसको कैपिटल ई स्मॉल ई लिखे। ओके, तो क्या हम बोलेंगे इसका कान जो है ना होमोजाइगस डोमिनेंट है? ऐसा तो नहीं बोलते हैं हम लोग, तो बोलेंगे भाई उसका कान जुटा हुआ है, उसका कान जो है जुटा हुआ नहीं है, बस। तो हम जब फिनोटाइप की बात करते हैं तो जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग थोड़ी बोलेंगे यू आर होमोजाइगस डोमिनेंट, यू आर होमोजाइगस रिसेसिव, ऐसे तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस होमोजाइगस जो भी है ये सब जीनोटाइप को डिस्क्राइब कर रहा है। गॉट इट? इट इज क्लियर प्रिंस? यू हैव एनी डाउट इन दैट? हाँ सर। सर अगर इसको फिनोटाइप में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? फिनोटाइप में आप इसका इसको जो सीधे डोमिनेंट लिखेंगे है, सर, ब्राउन आइज या फिर ब्लू आइज? हाँ देखो ये आर जो है रोलिंग टंग का है, टंग रोलिंग का है। ओके, कैपिटल आर का मतलब है कि टंग रोल कर पा रहा है, इसमें दोनों एलील वही है।
कि आप टंग को रोल कर पाते हो। तो आप जब फिनोटाइप बोलोगे तो आप बोलोगे कि ही इज ए टंग रोलर, ये टंग को रोल कर पाता है। ओके, लेकिन आप जब स्मॉल आर कैपिटल आर, ओके, ये वाला कॉम्बिनेशन है, वो टंग रोल नहीं कर पाता है, तो आप बोलते हो कि ही इज ए नॉन रोलर, ये अपना टंग रोल नहीं कर सकता। लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कि ही इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर टंग, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तो फिनोटाइप जब बोलते हैं तो फिनोटाइप में हम लोग कैरेक्टर की बात करते हैं, जो दिखता है वही बोलते हैं। और जब जीनोटाइप की बात होती है उसमें हम लोग बोलते हैं ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, रेसेसिव है या हेटेरोजाइगस। ये डिस्क्राइब करेगा आपके जीनोटाइप को। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, from parents to children, tongue rolling, an example of inheritance. अच्छा, ये जो है टंग रोलिंग अपनी जगह पे है, लेकिन इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनहेरिटेंस, यानी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, लेकिन कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहा है किसके बेसिस पे हो रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसफर ऑफ व्हाट? जैसे कि हम बोलते हैं कि वेरी टॉल हाइट, ओके, both mother and father are very tall height, 7 feet, okay, very tall height both, okay, तो बच्चा भी बहुत टॉल हाइट निकला। तो अब जो है क्या हुआ, आपको तो फिनोटाइप दिख रहा है ना, हाइट दिखाई दे रहा है, वो फिनोटाइप है, लेकिन इसका जो जीनोटाइप है इज नथिंग बट डीएनए ट्रांसफर, यानी पेरेंट्स से जो डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गया, वही फिनोटाइप को इफेक्ट करता है। ओके, अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है कैरेक्टर, यही इस चीज का इंपॉर्टेंस है। पनेट स्क्वायर नाम है, ये वाला चीज जो है साउंड इज नॉट कमिंग, साउंड इज नॉट कमिंग प्रॉपर, वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके ओके, आई थिंक आई हैव टू स्विच ऑफ माय वीडियो नेसेसरी, थोड़ा कम है ना, बैंडविड्थ अभी कम होगा, तो मैंने अपना वीडियो बंद कर दिया है। आई थिंक इट विल इम्प्रूव। अभी कुछ सुधर रहा है? पनेट स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में जो है पनेट स्क्वायर में डेफिनेटली क्वेश्चंस आएगा आपको एग्जाम में भी, नो डाउट अबाउट इट। वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर इज अ पनेट स्क्वायर। ये पनेट स्क्वायर है क्या? सो पनेट स्क्वायर is going to tell us about phenotype, okay, किस टाइप का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके ये येलो या ऑरेंज कलर का जो बॉक्स है फिगर 3.5, उसको आप देखिए, डब्बा बनाए, डब्बा का 4 हिस्सा बनाए, यहाँ पे लिखे पेरेंट, क्योंकि पेरेंट तो 2 ही होता है भैया। Sir, your screen is not working only. My screen is not showing. सर मेरे में शो कर रहा है। एक मिनट, let me see. Okay, this is. सर आपका वॉइस भी मेरे में क्लियर है सर। वॉइस भी ब्रेक हो रहा है क्या? सर वॉइस और वीडियो दोनों सही है मेरे में। ठीक आ रहा है। Okay.
हाँ, you can switch off this one, then थोड़ा सा आवाज साफ रहेगा। तो पेरेंट जो है, पेरेंट में एक you can switch off your mic, no, otherwise that background sound is coming, no, then that also causes problem. I think someone is again switched on. Off ही रखिए, हाँ? तो जब when you are answering or asking only you keep your mic on. So here in the parent, so one is the male and other is the female parent. Okay. Now suppose the so here there is the parent 1 and here there is the parent 2. Okay, so suppose we can say like this, there is a male parent and here is the female parent. Each parent, for this tongue rolling, we are taking this as an example. Each parent will have the either capital R or small r, that either this allele or this allele. Okay, some combination will be there. For example, if the from the father side homozygous tongue roller, okay, if the parent is homozygous tongue roller, homozygous tongue roller, that means what? होमोजाइगस का क्या मतलब है? both alleles will be same, correct? Tongue roller is a dominant or recessive phenotype? टंग को रोल डोमिनेंट है ना, ये डोमिनेंट है। तो ये हम लोग इसमें बता रहे हैं होमोजाइगस टंग रोलर। तो इसमें आप क्या इसका जीनोटाइप क्या लिखोगे? जीनोटाइप तो सर आर ही लिख देंगे ना सर। हाँ, कैपिटल या स्मॉल, ये बोलिए सर। कैपिटल आर, करेक्ट। होमोजाइगस है एंड टंग रोलर है। ओके, होमोजाइगस टंग रोलर, कैपिटल आर। ओके, दिस इज क्लियर। तो पनेट स्क्वायर में क्या करते हैं कि इसका जीनोटाइप लिख देते हैं। ओके, पहले देखते हैं कि पेरेंट क्या है। होमोजाइगस टंग रोलर है, ये आपको पहले इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आपको जब ये इंफॉर्मेशन रहेगा तभी आप उसका जीनोटाइप लिख पाएंगे। तो आपको पता है कि ये होमोजाइगस टंग रोलर है, तो इसका जीनोटाइप है कैपिटल आर। तो ये जब गैमीट्स फॉर्म करेगा तो एक एलील इस तरफ लिखिए और दूसरा एलील इधर लिखिए, क्योंकि हैप्लॉइड होता है ना। तो ये एक टाइप का हो गया, ये एक टाइप का हो गया। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, इफ द फीमेल पेरेंट is a heterozygous tongue roller, ओके, इसका जीनोटाइप क्या होगा? हेट्रोजाइगस टंग रोलर। ये टंग रोलर है लेकिन हेट्रोजाइगस है, तो इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए? हेट्रोजाइगस का मतलब डिफरेंट पेयर। हाँ, डिफरेंट एलील्स है। शब्दों को पकड़िए और उसी को यूज करना है। आपको टेक्निकल टर्म यूज करना होगा। आप अगर अपने आंसर में इन टेक्निकल टर्म्स को यूज नहीं करोगे, आपको नंबर नहीं मिलेगा। मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली द स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, द टर्म्स। Okay, so you have to use the terms in your answers. So the alternative forms of the genes are alleles. So here heterozygous tongue roller, when we say tongue roller, that means वो रोल कर पा रहा है, इसका मतलब डोमिनेंट एलील तो होगा उसके पास डेफिनेटली।
ये हेट्रोजाइगस है, इसीलिए दूसरा वाला हम लोग स्मॉल लिखेंगे, तब ये हेट्रोजाइगस हो गया। और ये टंग रोलर है, कैपिटल तो होना ही चाहिए, डोमिनेंट वाला होगा ही। अब ये जब गैमिट्स फॉर्म करेगी फीमेल पेरेंट, देन व्हाट वी विल डू, एक तो कैपिटल आर इसके पास है और एक स्मॉल आर है, इस तरीके से। यहां तक आपको समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, अब देखिए, अब आपने क्या किया, सबसे पहले पेरेंट का जीनोटाइप लिखा। जीनोटाइप के बेसिस पे आपने क्या किया, ऐसे ब्रेक करके दोनों एलील्स को अलग अलग लिखा, क्योंकि ये गैमिट्स हैं, हैप्लॉइड है ना, गैमिट्स हैं, इसीलिए दोनों को अलग अलग लिखा आपने। अब इस तरीके से लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस लिखेंगे। कैपिटल आर, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कॉम्बिनेशन। तो इसके बेसिस पे ये जो तो पेरेंट्स हैं, इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो प्रोजेनी है, इनके क्या जीनोटाइप्स संभव हैं, ये टाइप के जीनोटाइप संभव हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। यही दोनों टाइप के इसके जीनोटाइप संभव है। ओके, सर हमेशा सर ये कैपिटल आर सर क्यों आगे आया सर नीचे वाले में भी? ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लिख के देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सर वैसा नहीं सर, तब पहले स्मॉल आर लिख सकते हैं। हाँ हाँ, लिखो। तो वो बॉक्स के अंदर का बात कर रहे हैं सर। जनरली, तो स्मॉल आर और फिर आर लिख सकते हैं ना? हाँ देखो, जनरली क्या होता है कि लोग प्रिफर करते हैं कि पहले जो, अगर डोमिनेंट जीन है तो उसको पहले लिखने का एक जो है मान्यता है, कि ज्यादातर लोग यही फॉलो कर रहे हैं कि कैपिटल को, ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देखिए सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से क्या है, जनरली एक ट्रेंड बन गया। लेकिन आप अगर इसको पहले भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर स्मॉल आर कैपिटल आर लिखोगे तो भी वही है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, इसका भी वही मीनिंग आएगा, है ना। लेकिन लिखने का जो है, एक जो एक्सेप्टेड तरीका है, एक कैपिटल को पहले लिख देते हैं, स्मॉल उसके बाद लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल आर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोटाइप को क्या बोलेंगे, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? क्विकली आंसर। कैपिटल आर इससे सर होमोजाइगस। होमोजाइगस। डोमिनेंट और रिसेसिव? डोमिनेंट। डोमिनेंट, कैपिटल का मतलब डोमिनेंट होता है, सो दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। ये भी सेम है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर? सर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, मींस हेट्रोजाइगस। यस, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ओके, इस तरीके से। सो अब ये रिजल्ट, ये जो आपने पनेट स्क्वायर बनाया, ये रिजल्ट आपका क्या बता रहा है कि 50% जो इसके जो बच्चे होंगे, ये दोनों पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे, 50% इनके होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे and 50% will be heterozygous, okay, dominant। इस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, okay। But whether all of them will be able to roll their tongue or not, सभी बच्चे जो हैं उनके अपने टंग को रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे?
हाँ सर, सर सब कर पाएगा क्योंकि सर सब में सर डोमिनेंट आ रहा है। सब में कैपिटल आर है, सब में डोमिनेंट जीन है। ओके, और डोमिनेंट जीन का मतलब है कि टंग रोलर। ओके, सो सभी लोग जो है दे कैन ऑल द चिल्ड्रन देयर चिल्ड्रन विल बी एबल टू रोल देयर टंग। ओके, नाउ दिस इज पनेट स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पनेट स्क्वायर? इससे आप क्या क्या आपको पता चला? You can get the all possible सर आपका combination। आवाज फंस रहा है। हाँ, ये पनेट स्क्वायर के द्वारा हम लोग सभी कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप्स का पता लगा सकते हैं कि दो पेरेंट्स अगर हैं तो उनके बच्चों में क्या जीनोटाइप्स पॉसिबल है, ये आपको पता चलता है पनेट स्क्वायर के द्वारा। और इसी जीनोटाइप्स के बेसिस पे आप ये बोल पाएंगे कि क्या फिनोटाइप्स इनका बनेगा। ओके, तो ये कैपिटल आर इसका जीनोटाइप है और इसके नीचे हमने होमोजाइगस डोमिनेंट जो लिखा ये उसका फिनोटाइप हमने लिखा। ओके, विच इज ए टंग रोलर और नॉट, दैट यू विल राइट। ओके, सो in the next class we will see how the Punnett square, okay, crisscross inheritance, okay, sex linked inheritance, okay, this one is very important। अब इसी के बेसिस पे, ये Punnett square के बेसिस पे हम लोग को ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, ओके, पेज नंबर 31 32, ओके, ये सब इसमें आपका बड़ा अच्छा सब क्वेश्चन इसमें से फ्रेम होता है। और जैसे कि आपका पेज नंबर 35 में क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, पेडिग्री चार्ट। ओके, पेडिग्री चार्ट यानी दो पेरेंट्स के इसमें नेक्स्ट जनरेशन में क्या आपका पॉसिबिलिटी बन रहा है, ये सब टाइप का इसमें। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो इन दी कमिंग क्लासेस वी विल सी। तो हाँ, यस, सर ये पनेट स्क्वायर सर आता है सर बोर्ड्स में क्या? हाँ, आपको पनेट स्क्वायर जो है क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पनेट स्क्वायर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो इन जेनेटिक्स लेट अस सी, genetics 23. Okay, at the end of our this one we will also, because आपका ये टाइप का क्वेश्चन भी रहता है ना लास्ट में, वो जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहता है ना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से हाँ उसमें, सर। हाँ, उसमें ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में। लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है इसमें तो आने का पूरा प्रोबेबिलिटी रहता है इसमें। ओके, सो ये बता देगा कि दोनों पेरेंट्स का ये जीनोटाइप है, उसका क्या फिनोटाइप बन सकता है। उसके बाद फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में भी आता है। ओके, लाइक व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन भी पूछ सकता है, या कैन आस्क दैट। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या रेशियो आता है, कि ये टाइप का वो टाइप का कॉम्बिनेशन क्या रेशियो आएगा अगले जनरेशन में, तो ये टाइप का है। ओके, so we will also solve the previous 10-year questions also, we will solve all those things, we will do, don't worry। Okay, now here important point is that why I am stressing so much on this one, this is extremely important topic। इसमें से तो क्वेश्चन मिस होने का सवाल ही नहीं है, क्वेश्चन तो आना ही आना है इसमें। ओके, तो इसमें टर्म्स बहुत है, कंफ्यूज मत होइए। डेफिनेटली आज ही उसको रिवाइज कीजिए, आज हमने जो क्लास में किया उसको रिवाइज कीजिए। Then next class, that is tomorrow, we will go forward in this one। Okay, चलिए, so I will see you all tomorrow। Okay, thank you।
है।